students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is more about Scratch. अब Scratch के basic features के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, basic blocks को भी हम अच्छे से जान चुके हैं. अब हम जानेंगे Scratch को और अच्छे से, उसके blocks को और अच्छे से जान लेते हैं. Things to learn about Scratch: working with different blocks, adding a new sprite, changing the costume of a sprite stage, changing the backdrop. Adi, when I am working in Scratch, I see there are different types of blocks in blocks palette and I know about only some of them. Do you know about these blocks? Adi, I also know about some of them. Let's ask to Robo. Adya, Robo, please explain about the different blocks of Scratch. Robo, friends, different blocks have different tasks. Let us learn about it in this chapter. तो आदि और आद्या की तरह हम भी इन blocks के बारे में जानेंगे. In the previous class, you studied about the basic features and components of Scratch. You also studied how to move the sprite, how to say things. Now we shall learn further about some extended and additional features of Scratch language. But before that, let us have a brief recap of the features learned earlier. तो पहले हम जो प्रीवियस क्लास है उसमें हम पढ़ चुके हैं जो भी बेसिक फीचर्स थे और कंपोनेंट्स थे स्क्रैच के. हमने जाना कि कैसे हम स्प्राइट को मूव कराते हैं और कैसे उसे बुलवाते हैं. ठीक है, जैसे आपको हाई बुलवाना है स्प्राइट से तो आप उसको कमांड देते हो या उस तरह का ब्लॉक आप यूज़ करते हो. तो आगे बढ़ने से पहले हमने जो पहले पढ़ा है उसका एक रिकैप ले लेते हैं. Know about Scratch. Scratch is a simple programming language especially used for educational purposes. It allows you to create interactive stories, animations, and games. It provides a graphical environment which makes it easy and interesting to use. In Scratch, we simply connect different blocks of code to build the entire program. तो स्क्रैच है क्या? स्क्रैच आपका सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप इजीली अपनी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो, एनिमेशन एंड गेम्स क्रिएट कर सकते हो. ये आपको एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. थिंक एंड शेयर. कैन स्क्रैच बी रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स? बताइए बच्चों, क्या ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकता है? Components of a Scratch window. Look at the Scratch screen and its components as given on next page. अब जैसे ही आप Scratch window open करते हो तो आपके सामने ये सारे components आ जाते हैं. Now, different blocks in Scratch. Looks block. Looks blocks are purple color coded blocks. They are used to control the appearance of the sprite. They control the look, size and position of the sprite. Let us understand the functioning of some blocks. तो लुक ब्लॉक्स आप समझ ही गए होंगे. लुक्स ब्लॉक जो होता है ये आपके जो स्प्राइट है उसके लुक्स को, उसकी साइज को और उसके पोजीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है. या इनके थ्रू आप अपने स्प्राइट की उसके लुक को आप चेंज कर सकते हो, उसके साइज को आप चेंज कर सकते हो और उसकी पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हो. तो कुछ यहाँ पे आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं, इनकी फंक्शनिंग हम समझ लेते हैं. पहला है say hello for 2 seconds. This block displays text in speech bubble for selected period of time. Say hello. This block displays the sprite with a speech bubble containing text. Think for 2 seconds. This block displays the sprite with a thought bubble containing text for selected period of time. Think This block displays the thought in bubble containing text. Change color effect by 25. This block changes the specified effect on the sprite by the specified amount. These are different sprites like color, Fisher, pixelite, whirl, mosaic, brightness and chest. Change size by 10. This block sets the sprite's size by the specified amount. Show. This block displays the sprite in case it is hidden. Hide. This block hides the sprite if it is visible. तो यहाँ पे ब्लॉक्स को डिटेल में जान लेते हैं. हेलो जो आपका ये बबल होता है या जो भी आपका ब्लॉक होता है ये स्पीच बबल कहलाता है जिसमें आपका जो स्प्राइट होता है
वो कुछ बोल रहा होता है तो उसके बबल के थ्रू वहाँ पे, अब वो मुंह से तो नहीं बोल सकता, तो वहाँ पे बबल्स के थ्रू उससे आप क्या करते हैं, बुलवाते हैं। और ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब वो बबल जो होता है, जो ब्लॉक होता है, वो कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद वो हट जाता है। ठीक है, से हेलो जो है ये आपका ब्लॉक है, ये भी आपके स्प्राइट को क्या करता है, बुलवाता है। मतलब ये एक स्पीच बबल के साथ आता है जिसमें आपका टेक्स्ट कंटेन होता है। तो ये आपके डिफरेंट है, आपके जैसे स्पीच या कोई भी डायलॉग बोलने के लिए इन ब्लॉक्स को आप यूज़ कर सकते हो, और ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। चेंज कलर जो होता है ये आपके स्पेसिफाइड इफेक्ट को ये क्या करता है, वहाँ पे चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें आपका जो स्प्राइट होता है उसके कलर को आप डिफाइन करते हो, उसके इस विषय को आप डिफाइन करते हो। यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। चेंज साइज बाय 10, ये जो ब्लॉक है ये आपके स्प्राइट के साइज को क्या करता है, सेट करता है। ठीक है, जितना भी आपने उसको अमाउंट में स्पेसिफाइड किया होगा। शो जो ये आपका ब्लॉक है ये आपके स्प्राइट को शो करता है अगर वो पहले क्या हुआ है, हाइड किया हुआ है। और हाइड जो कमांड है या ब्लॉक है ये आपके स्प्राइट को हाइड करता है अगर वो विजिबल है तो। क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ विल यू टर्न द स्प्राइट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, तो आपको बताना है कि आप अपने स्प्राइट को कैसे उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हो। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग लुक्स ब्लॉक ऑन अ स्प्राइट। अब यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स को दिखाया गया है कि कैसे आप अपने स्प्राइट को यहाँ पे उसके लुक्स को चेंज करते हो। स्प्राइट सेइंग हेलो, थिंकिंग एंड चेंजिंग द साइज एंड कलर ऑफ स्प्राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो स्प्राइट है वो बोल रहा है और उसके साइज एंड कलर को भी चेंज किया गया है। Now pen block, the pen blocks are green in color. Pen blocks are related to a sprite's pen, which is a feature that allows a line to be drawn in accordance with the sprite's location. The blocks are associated with turning the pen on and off, stamping a sprite's image onto the stage and adjusting the various appearance values of the pen. This block is present as an extension to the Scratch 3.0. Follow the given steps to add pens to block category. Step 1, click on the add extension button at the bottom. Step 2, click on the pen option and it will be added to the code tab. ठीक है, अब हम जान लेते हैं पेन ब्लॉक के बारे में। पेन ब्लॉक जो होते हैं ये ग्रीन कलर में होते हैं, सारे के सारे ब्लॉक्स है। ठीक है, पेन ब्लॉक्स जो होते हैं ये आपके स्प्राइट्स के पेन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और जो कि इसके फीचर को अलाउ करते हैं एक लाइन ड्रॉ करने में अकॉर्डिंग विद द स्प्राइट्स लोकेशन। मतलब उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए आपको एक लाइन दिख जाती है कि कहाँ का आपका स्प्राइट जो है वो जा रहा है। इन ब्लॉक्स को आप एसोसिएट कर सकते हो विद टर्निंग द पेन ऑन एंड ऑफ। मतलब जैसे आप ऑन करेंगे ये वर्क करेगा, ऑफ कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं कि कैसे आप पेन ब्लॉक को यूज़ करते हो। इसके लिए आप क्लिक करेंगे ऐड एक्सटेंशन पे, बटन पे, जो कि आपको बॉटम में मिल जाएगा। देन आपको क्लिक करना है पेन ऑप्शन पे और ये आपके कोड टैब को ऐड कर देगा। Now let us learn about some of the pen blocks and what they are used for. Erase all, clears all pen marks on the screen. Stamp draws a copy of the sprite on the stage. Pen down turns the pen feature on inside a sprite. The sprite will leave a pen mark on the screen wherever it moves until the pen is turned off. Pen up turns the pen feature off, stopping a sprite from penning. Set pen color to sets the color of the pen to a predetermined color. Change pen color by 10. Changes the color of the pen by a specified amount. Set pen color to 50. Sets a property of the pen to a given input. Set pen size to 1. Changes the thickness of the pen to a specific number. Greater number equals greater thickness. अब यहाँ पे कुछ पेन ब्लॉक्स हमें दिए गए हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। इरेज ऑल का मतलब होता है कि आपके जितने भी पेन मार्क्स हैं आपके स्क्रीन पे उनको ये क्लियर करता है। स्टैम्प का मतलब होता है कि आपके स्प्राइट की एक कॉपी ड्रॉ करता है स्टेज पे। पेन डाउन का मतलब होता है कि आपका फीचर जो आपका स्प्राइट है जहाँ जहाँ चलेगा वो एक पेन मार्क पीछे छोड़ता हुआ जाएगा जब तक आप उसे टर्न ऑफ नहीं कर देते। पेन अप का मतलब होता है कि आपका जो पेन फीचर है ये ऑफ हो जाएगा और आपके स्प्राइट जो है ये पेनिंग करना स्टॉप कर देगा।
अब आप अपने पेन का कलर अगर ब्लू में या किसी और कलर में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ब्लॉक दिया गया है, सेट पेन कलर 2। अब यहाँ पे जो चेंज पेन कलर है बाय 10, ये आपके पेन के कलर को चेंज करता है बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। आप अपने पेन की प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं टू अ गिवन इनपुट, और आप अपने पेन की थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं, उसको एक स्पेसिफाइड नंबर तक बढ़ा या घटा सकते हैं। Conceptual learning. Let us learn how to draw a line in Scratch using pen block. Look at the code and its output. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आप पेन ब्लॉक को यूज करते हैं। Drawing a square using a pen block. To draw a square using the following steps. Step 1, pen must be in a drawing position. Pen down. Step 2, set the pen color. Step 3, move some steps. Step 4, turn by 90 degree. Turn angle is 360 by 4. Sides of square is equal to 90. Step 5, move some steps. Step 6, turn by 90 degrees. Step 7, move some steps. Step 8, turn by 90 degrees. Step 9, move some steps. Step 10, turn by 90 degrees. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि कैसे हम पेन ब्लॉक को यूज़ करते हैं और पेन ब्लॉक को यूज़ करते हुए कैसे हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो पेन है ये ड्राइंग पोजीशन में होना चाहिए, मतलब आपका पेन डाउन होना चाहिए। इसके बाद आप पेन कलर को सेट करेंगे, देन आप कुछ स्टेप्स मूव करेंगे, इसके बाद आप 90 डिग्री टर्न करेंगे। ठीक है, और स्टेप्स आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप 90 डिग्री टर्न करेंगे, फिर और स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, फिर 90 डिग्री आप टर्न करेंगे, फिर और स्टेप आप आगे बढ़ेंगे और 90 डिग्री टर्न करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो स्प्राइट है वो एक स्क्वायर बना रहा होगा। सब्जेक्ट इंटीग्रेशन. राइट द स्क्रिप्ट टू ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड सर्कल इन स्क्रैच. तो इसी तरीके से आप ट्रायंगल एंड सर्कल बना सकते हैं स्क्रैच में। इसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी। Think and share. Without pen block category, what would have happened? अगर पेन ब्लॉक कैटेगरी नहीं होती तो क्या होता? Now next is a sound block. Sound blocks are pink in color. Sound blocks are used to play and hear a sound in Scratch project. तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है साउंड ब्लॉक्स का। इन ब्लॉक्स के बारे में जान लेते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। साउंड ब्लॉक्स जो होते हैं ये आपके साउंड को प्ले और सुनने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला है स्टार्ट साउंड म्यू. इट प्लेज द सेलेक्टेड साउंड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट विदाउट पाउजिंग द स्क्रिप्ट. नेक्स्ट इज प्ले साउंड म्यू अंटिल डन. प्लेस द साउंड बाय pausing the script until the sound has finished playing. Stop all sound used to stop all the sounds being played on all sprites. तो आपको स्टार्ट करना है पहले तो साउंड, तो आपने यहाँ पे साउंड डाला म्यू का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्ले साउंड करना है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद आप स्टॉप करेंगे ऑल साउंड को, ठीक है। तो इससे आपकी जो सारी की सारी स्लाइड्स है में सारे के सारे जो साउंड है वो ऑफ हो जाएंगे। इवेंट ब्लॉक्स कंट्रोल इवेंट एंड स्टार्टिंग ऑफ स्क्रिप्ट. They are yellow in color. They are used to control events and triggers the script to run and give the output. If they are not used, running multiple scripts at a single time is difficult. When clicked, runs the script given below it. When the green flag is clicked, when space key pressed, runs the script given below it. When a specified key is pressed. When this sprite clicked, runs the script given below it. When a sprite is clicked. अब यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम इवेंट ब्लॉक्स कहते हैं। इवेंट ब्लॉक्स जो होते हैं ये आपके स्क्रिप्ट की इवेंट और उसकी स्टार्टिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये सारे के सारे येलो कलर में प्रेजेंट होते हैं ब्लॉक्स पैलेट में। ये जो आपका व्हेन क्लिक्ड जो आपका ब्लॉक है ये आपकी स्क्रिप्ट को रन करता है, ठीक है, जब भी आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करते हैं। दूसरा जो है ये आपकी स्क्रिप्ट को रन करता है जब भी आप कोई भी स्पेसिफाइड की को प्रेस करते हैं। एंड जो तीसरा ब्लॉक है येलो कलर का ये आपकी स्क्रिप्ट को रन करता है गिवन बिलो व्हेन इट इज अ स्प्राइट इज क्लिक्ड, जब भी आप स्प्राइट पे क्या करते हो, क्लिक करते हो। Conceptual learning. In the code given below, the sprite will move turn 45 degree and play a sound on pressing the space bar key. आपके कोड जो होते हैं जो आपके स्प्राइट में दिए गए होते हैं, तो
तो ये जो होते हैं ये आपके 45 डिग्री में टर्न करते हैं जब भी आपके सामने कोई भी साउंड जो है वो प्ले किया जाता है या फिर आप स्पेस बार की को प्रेस करते हैं। एडिंग अ न्यू स्प्राइट इन स्क्रैच, cat is the default sprite, but you can create a new sprite or import more sprites from the library in your project. Scratch provides 4 different options for adding sprite to your applications. These options are accessed through the choose a sprite button. To add a sprite, follow the given steps. Step 1, click on choose a sprite in the sprites info pane. A choose a sprite window pane opens. It shows the thumbnail of the available sprites. Step 2, select a category for the sprite. By default, all is selected. Step 3, click on a sprite you want to add. Here we have added a butterfly. Your new sprite is added to the sprites list and is also displayed on the stage. अब आप अपनी स्प्राइट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो आपका स्प्राइट होता है स्क्रैच में वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कैट होता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हो। तो न्यू स्प्राइट को आप क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो स्प्राइट की जो लाइब्रेरी है उसमें से। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, चूज़ करना है या क्लिक करना है एक स्प्राइट को, ठीक है, जो कि आपको स्प्राइट इन्फो पैन में मिल जाएगा। देन आपको एक स्प्राइट चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने थंबनेल्स जो है वो ओपन हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है अ कैटेगरी ऑफ फॉर द स्प्राइट। देन आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑल जो है वो सेलेक्टेड होता है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे उस स्प्राइट पे जिसे आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बटरफ्लाई को ऐड किया गया है। तो जो न्यू बटरफ्लाई है या जो न्यू स्प्राइट है वो आपके जो करंट जो आपकी पहले का स्प्राइट है उसको क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा और आपके स्टेज पे डिस्प्ले होना शुरू कर देगा। क्रिटिकल थिंकिंग, विच ब्लॉक कैटेगरी हैज़ ऑप्शंस टू ड्रॉ। नाउ यू शुड नो to delete any sprite, select it and click on the delete button. अपने sprite को delete करने के लिए simply आप उसको select करेंगे, then आप delete button पे click करेंगे तो आपका जो sprite है वो delete हो जाएगा। Simplified learning, divide the student into groups and discuss. Scratch provide different option for adding a new sprite. तो ये आपको ग्रुप्स बना करके डिस्कस करना है। Now changing the costume of a sprite. A costume is an alternate appearance of a sprite. Sprites can change their look to any of their costumes, and the effect is used to make an animation for a game or for stories. The sprite must have at least one costume. For example, the cat default sprite has 2 costumes. To change the costume, follow the given steps. Step 1, click on costume tab. You will see butterfly 2A and butterfly 2B costumes under the butterfly sprites costume list. Step 2, click on butterfly 2B costume. The new sprite costume is added on the stage as well as in the sprites list area. अब अपने स्प्राइट के जो कॉस्ट्यूम होता है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। कॉस्ट्यूम जो होता है ये आपका ऑल्टरनेट अपीयरेंस होता है, ठीक है, मतलब इससे आप अपने जो स्प्राइट है उसके जो कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो या उसके कॉस्ट्यूम को आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बटरफ्लाई 2A एंड बटरफ्लाई 2B। तो आपको इनमें से एक को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने बटरफ्लाई 2B कॉस्ट्यूम को सेलेक्ट किया है। फिर आप देखेंगे आपका न्यू स्प्राइट जो है उसकी कॉस्ट्यूम जो है वो स्टेज पे अपीयर हो जाएगी। Sprite stage. The stage provides the canvas upon which sprites are displayed and interact with one another. The stage is 480 units wide and 360 units high. As you can see, the x-axis runs from coordinates 240 to minus 240 and the y-axis runs from coordinates 180 to minus 180. The middle of the stage has a coordinate location of 0, 0. Scratch keeps you informed of the pointer location whenever it is moved over the stage by displaying its XY coordinate position in the mouse X and mouse Y fields just beneath the bottom right stage of the side of the stage. तो यहाँ पे आप स्प्राइट स्टेज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं।
स्टेज जो है ये 480 यूनिट के साथ होता है जो कि वाइड होता है, और 360 यूनिट के साथ ये क्या होता है, हाई होता है। मतलब इसकी हाइट जो है ये यहाँ पे हमें बताई गई है। यहाँ पे आपको दो एक्सिस देखने को मिल जाते हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, जिनको इन नंबर्स के साथ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। चेंजिंग द बैकड्रॉप, the stage background is the term used to describe the backdrop. To make our projects more exciting and engaging, we can modify the stage backdrop. By default, the backdrop of the stage is white. The choose a backdrop button is used to change the background of the stage. By using 4 available icons from this button, you can choose a backdrop from the library, paint a new backdrop, randomly select one backdrop from the library and upload a backdrop from the file stored in your computer. To change the backdrop of the stage, follow these steps. Step 1, click choose a backdrop icon on the bottom right corner of the window. The choose a backdrop window appears. Step 2, click on the desired backdrop. The new backdrop will be added to the stage. तो बैकड्रॉप जो होता है ये आपके जो स्क्रैच विंडो होता है उसका बैकग्राउंड कहलाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बैकग्राउंड होता है ये वाइट कलर का होता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसको आप लाइब्रेरी से भी डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर की, या फिर आप इसे अपने कंप्यूटर की किसी फाइल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है चूज अ बैकड्रॉप आइकन पे, जो कि आपको बॉटम राइट कॉर्नर पे नजर आ जाएगा। देन आपको चूज अ बैकड्रॉप विंडो अपीयर हो जाएगी। इसमें से आपको बैकड्रॉप को चूज करना है, आपको क्लिक करना है ऑन द डिजायर्ड बैकड्रॉप को। देन आपके सामने जो बैकड्रॉप है वो आपके स्टेज पे ऐड हो जाएगा। You should know the file extension of a Scratch project is .sb3। तो आपकी जितनी भी Scratch की फाइल्स होती हैं ये एक्सटेंशन .sb3 के साथ सेव होती है। कंप्यूटर एटिकेट, ऑलवेज सेव योर प्रोजेक्ट बिफोर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। हमेशा अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने से पहले, स्विच ऑफ करने से पहले अपनी फाइल को क्या करना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए। Tricky terms, stage, the area where the sprite moves, backdrop, background of the stage, block palette, area where related instructions are grouped together. So children, इस चैप्टर में हमने जाना कि कैसे आप अपने स्प्राइट को चेंज करते हो। हमने मोर ब्लॉक्स के बारे में जाना, ठीक है, और हमने जाना कि कैसे आप अपने स्प्राइट को, मतलब आप उसकी पूरी की पूरी जो लुक है उसको भी चेंज कर सकते हो, उसकी ड्रेस को भी आप चेंज कर सकते हो। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.